I know a few people जिनको 60-65 पे उनका नहीं clear हो पाया. If you have anything other than the CFA to add on to your resume, then you can expect a package above 10. So the thing is कि ये ऐसे एग्जाम के लिए ना बस पढ़ते जाओ ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है. वो पढ़ने के साथ आपको the very last month, the month just before your exam, that I believe is a make or break for your preparation. Maybe the exam is much harder. You don't know how the questions are in the actual exams. So I did not expect. My score was 1785 and almost हर subject में मेरे को 70% के ऊपर ही आया था. So hi Shreya, how are you? Hi Tejas, I'm okay. I'm very happy to have cleared my exam now. तो कैसे लगा जब रिजल्ट देखा तुमने? So just at the first moment, एक तो they always release the result before time, at least 30 minutes before. But the relief that comes to you after you see that passed word, it's like we know as candidates कि हमारा कितना time गया है, हमने कितनी practice questions, हमने कितने mocks बैठ के दिए हैं. So वो उसका जो value रहता है उस time का, it's immeasurable. तुम्हारा स्कोर क्या था रिजल्ट में? My score was 1785 and almost हर सब्जेक्ट में मेरे को 70% के ऊपर ही आया था. So did you expect this good score? See, I was getting 80% in my mocks, but then एक हमेशा वो fear रहता है ना कि maybe the exam is much harder. You don't know how the questions are in the actual exams. So I did not expect 70% in all 10 subjects, especially because my quants was very weak. But luckily ऐसे अच्छा result आया. So congratulations again and Thank you. please introduce yourself for our audience. मतलब तुम्हारा schooling background और कैसे तुमने CFA को explore किया, मतलब पता कहाँ से चला तुम्हें CFA के बारे में? Sure. Thanks, Tejas. I'm Shreya Tiwari. I'm a final year student at St. Xavier's College. I found out about CFA after I finished a course on financial modeling, and I started preparing in January 2024 to give January 2025 to give November 2025 exam. And mostly I took offline coaching from IMS Pro School in Mumbai. And then other than that, I also referred to many additional resources on YouTube, including your channel, Tejas. Thank you so much for the strategy videos that you provided. They were very helpful, especially in the last few days when you're very nervous. You start forgetting concepts because of how big the syllabus is. You were telling about your Q&A video. That was very, very important. And yeah, so almost around मेरे को 10 to 11 months लग गए प्रिपरेशन के लिए. तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी डेली? सिलेबस कितना टाइम दे रहे थे तुम डेली पढ़ाई करने के लिए, और सिलेबस कैसे ख़त्म किया, मतलब वीडियोस देख के ख़त्म किया? तो द थिंग इज कि ये ऐसे एग्जाम के लिए ना बस पढ़ते जाओ ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है. वो पढ़ने के साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट द सिलेबस, एक तो पहले बिफोर यू एनरोल इनटू एनी कोचिंग, पहले से खुद से बैठ के आपको सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए और आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि मुझे कितना आ रहा है इसमें. फॉर मी इट वाज not all new, but there was a lot of concepts in detail and the syllabus is very vast, so that's why I opted for offline coaching. And then wahan pe bhi they mostly start with quants because that's the backbone subject for every all the other 9 subjects, and quants does seem intimidating to a lot of people, but once आपका वो थोड़ा strong हो गया है ना, तो आप बाकी subjects भी जैसे portfolio management भी आप अच्छे से कर सकते हो. So I would say that to the candidates who are preparing, get your strong foot in quants and जो भी आप कर रहे हो उसका practice जरूर करना from starting में. तो you can use Trezor के questions जो हर chapter के लिए रहते हैं, but after that LES portal questions are the most important resource. Okay. तो तुमने एवरीडे कितना एवरेज आवर्स दिया, स्पेंड किया स्टडी में? सो स्टार्टिंग में तो थोड़े मैंने कम घंटे दिए थे. स्टार्टिंग में आई वुड डू अराउंड 2 hours every day, but the very last month, the month just before your exam, that I believe is a make or break for your preparation. So for that I would give 6 hours every day
of focus studies and practicing my all the questions from LES portal, premium pack, and I gave around 10 mocks during हम्म that time. So that month is very crucial. And again, number of hours does not matter. अगर आप बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में पढ़ लिए बट फिर बाद में आपको कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा है, then that is again a problem. Then you need to start from basics, or like at least spend a majority of your time recalling everything. तुमने अपना सिलेबस कितने महीने कंप्लीट किया था, मतलब पहले एग्जाम के पहले? तो सिलेबस मेरा एग्जाम के 1.5 months पहले खत्म हो गया था, बिकॉज मैं जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट करती थी उसके बाद मैं उसके से क्वेश्चंस करती थी, एलईएस से क्वेश्चंस करती थी। फिर प्रीमियम पैक में तो मिक्स रहता है, बट फिर आई यूज्ड टू रेफर टू थर्ड पार्टी आल्सो, आईएफटी एंड लाइक मेरे कोचिंग के भी क्वेश्चंस थे, सो आई वुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलोंग साइड. So that's why it took me slightly longer. But when somebody, a new candidate is approaching, then they can expect to finish the syllabus in 5 to 6 months. 5 to 6 months, ओके। Hmm. मतलब उतना तो देना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मतलब जितना जल्दी हाँ हो तो हाँ अच्छा ही है, लेकिन 5 to 6 months इज़ अ गुड टाइम। हम्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 7 to 8 months लेने चाहिए, मतलब लास्ट 2 months तुम्हें प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। या एग्जैक्टली. एंड जो भी ऐसे यूट्यूब में लास्ट 3 months कुछ नहीं पढ़ा, वो सब तो क्लिकबेट ही रहता है. आपको पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग, सो दैट यू डोंट पैनिक, यू डोंट स्ट्रेस. ऐसे ही थोड़ा टाइम दो अपने आप को सिलेबस खत्म करने के लिए, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, तो एज यू टोल्ड यू गेव टू 10 मॉक्स विच इज़ रियली ह्यूज, इतने मॉक्स कोई देता नहीं है। लेकिन जो 10 मॉक्स दिए उनमें तुम्हारा एवरेज स्कोर कितना आ रहा था इंस्टीट्यूट के तो और बाकी के अलग जो तुमने दिए उनका अलग बताओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ज़्यादा एग्ज़ाम से मैच करते हैं। हाँ, सो जो मैंने एलईएस पे 2 फ्री में आते हैं मॉक्स, उसमें मेरे को दोनों में 83% आया था. एंड देन अदर थर्ड पार्टी श्वेजर के मॉक्स रहते हैं, एंड बट आई वुड से प्रीवियस ईयर आपको मॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो आप वहां से करो. तो उस समय में मेरे को भी एवरेज अराउंड लो 80s आ रहे थे. 80s तक आ रहा था मतलब तुम्हारा स्कोर? हाँ, हाई हाई 70s और लो 80s. अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कितना स्कोर अगर मॉक्स में आया तो पास हो सकता है? तुम्हें तो इतना अच्छा स्कोर मिला क्योंकि तुम्हारा 80% ऑलरेडी आ रहा था, तो तुम्हें कितने परसेंटेज पे लगेगा कि कोई पास हो सकता है, मतलब 65, 70, 75, ऐसा कुछ गैस? No, I think I know a few people जिनको 60-65 पे उनका नहीं क्लियर हो पाया. So comfortably for your own peace of mind, I would say that you should consistently aim for more than 70%. And even if आपका थोड़ा गलत हो रहा है मॉक्स का, you go back, analyze that mock, and then फिर आप फिर से दो. And जो आपको वीक एरियाज लग रहे हैं ना, उसको ड्रिल डाउन करो. ओके, मतलब 70% इज गुड इनफ। हम्म कैन यू टेल मी हाउ योर एग्ज़ाम डे वेंट, मतलब सुबह से लेकर जब तक तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली तो कैसा फील हुआ और क्या क्या हुआ, मतलब ब्रेक में तुमने क्या किया, एग्ज़ाम के पहले क्या किया? हाँ, तो एक तो आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन इन योर वीडियोस दैट द स्टाफ देयर आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी फ्रेंडली. आपको प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फिर जब एग्जाम खुलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तब तब थोड़ा नर्वस? प्रॉब्लम आएगा. या बट ऑफ कोर्स वो एलिमेंट रहता है, आप बहुत नर्वस लगते हो, एंड देन फिर आपको लगता है कि हाँ, मतलब मेरे पास 2.5 hours है, फिर 2.5 hours है, बट वो बिल्कुल फील नहीं होता है. टाइम विल गो बाय वेरी क्विकली, वेरी सो यू फास्ट। नीड टू कीप अ चेक कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एम आई अप टू स्पीड. एंड व्हेन सिंस आई हैड गिवन सो मेनी मॉक्स, मेरे को एक्सपीरियंस था कि कोई ऐसे एक सब्जेक्ट का ये खत्म होने के बाद नहीं आता, वो जंबल होके आता हाँ। है ना. So that was very helpful for the real day. And difficulty level, I think that for my set, it was slightly more difficult than the mocks that was given in the website. But then फिर वो scaling करके normalize कर देते हैं आपके scores. But still वो जब hard questions आने लगते हैं and sometimes you can't solve something, then it messes up your flow. So it's very important to have a peace of mind, and even if कुछ थोड़ा सा मुश्किल question आ जाए, तो you keep that aside. There's an option to bookmark that question and keep moving forward until you're done with everything. And then again break में
चाहे जैसा भी हुआ आपका सेशन 1, you relax, you have a chocolate and then go for session 2, because आप ऐसे वो you can't carry the weight of session 1 to session 2, आपका फिर वो सब mess up हो हाँ, जाएगा। और फिर एग्ज़ाम के बाद कैसा फ़ील हुआ? पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो डे कैसा था तुम्हारा? एग्जाम के बाद तो आई वाज टोटली नॉट कॉन्फिडेंट, आई वाज लाइक 50-50% होगा, बिकॉज वंस यू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल देन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग द क्वेश्चंस हुँ, कि हुँ। ये क्वेश्चन, एंड दे डू गिव यू सम क्वेश्चंस टू थ्रो यू ऑफ, वो कुछ ना कुछ कर्व बॉल क्वेश्चंस तो हमेशा ही रहते हैं। So after that, I was not confident at all. But I spoke to other candidates, so they also said कि फिर एग्जाम के निकलने के बाद जब गूगल पे किया क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट उनके भी 10-12 गलत निकले थे, तो उससे थोड़ा मेरे को श्योरिटी लगी। बट फिर अब कुछ नहीं, आई गॉट बिजी विद कॉलेज देन। भूल गए फिर? अभी रिज़ल्ट पे देखेंगे, सीधा रिज़ल्ट डे पर। तभी टेंशन लेंगे। बस और पीएसएम करते टाइम, पीएसएम वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी टू व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर सो मेनी मंथ्स, बट हाँ। उसका तो मार्क्स का भी कुछ नहीं है, तो उसमें तो स्ट्रेस भी हाँ। नहीं होता। मैंने तो वो तो स्किप कर करके कंप्लीट किया था, 2x पे देखा था, क्योंकि बोरिंग लग रहा था। मैंने पहले ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग का किया था कहीं पर, तो पता था मोस्ट ऑफ हाँ। द थिंग्स, तो बोर लग रहा था, तो मैंने 2x पे देखा और कंप्लीट कर लिया। राइट, बट जो अगर कोई फ्रेशर है और हाँ, इफ इट्स देयर फर्स्ट टाइम विद फाइनेंशियल मॉडलिंग, देन इट्स गुड या कंटेंट फॉर देम। उनके लिए अच्छा है। और तुमने जो कोचिंग बताई, कौन सी कोचिंग थी तुम्हारी? IMS Pro School, it was an offline coaching. हम्म। I opted for offline because I wanted a better doubt solving questions and ये सब का. So they were very helpful with that because मेरे को in person अपने सारे doubts पूछने को मिल गया. अच्छा, सो दे डोंट हैव ऑनलाइन? They do have online as well, but I wanted something specifically offline. सो अभी ज़रा चेंज करते, करियर के बारे में पूछते। Hmm. एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी पूछ लिया, तो व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, और किस फील्ड में तुम्हें करियर बनाना है? So I've already been placed through my college at a consulting firm. I've been placed at Accenture Strategy, and the role is more of management consulting. So it's not directly related to finance, but I would say that CFA did help. हम्म। Um, Even in my interview, I did talk about some of the financial models that I've built, some of the equity research report that I've done. सो ऐसा नहीं है कि आप सीएफए करके एक फिक्स्ड या फिर नैरो करियर में ही जाओगे, इक्विटी रिसर्च या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिंस दीज आर नॉट फील्ड्स दैट आर always open to हम्म। freshers, they always do require some sort of work experience. So it is possible that you get into some directed field, directly not directly related field, हम्म। but some similar field. But the analytical ability that CFA gives, especially for corporate finance, जब आपको मतलब estimate करना पड़ता है कि ये project ज़्यादा अच्छा है या ये project ज़्यादा अच्छा है, या फिर basics of financial statement कैसे read करते हैं, how to analyze a company, all of that is still very important and still very relevant to other roles as well. हम्म। तो तुम्हें इक्विटी रिसर्च में जाना है ना, मतलब फाइनल गोल तो वही है ना? I see. Equity research mein I did start out in my college. I do in my college finance club we do equity research reports, and I do have a lot of fun doing that. But as a career, I'll have to think about that. So what do you think, the one someone cleared level 1 should expect a package or salary after clearing level 1 and doing the graduation? अभी तुम्हें So प्लेसमेंट भी मिली है, तो यू कैन लाइक टेल योर एक्सपीरियंस एंड यू कैन टेल अ रेंज कि कितने में मिल सकता है। So CFA ka like other people, other students in my college who have cleared level 1 and हम्म। who have sat for placements, they were for sure guaranteed an interview with the company. But then beyond that, it depends on the person itself कि आपने अपने resume में CFA के अलावा आपके हम्म। पास क्या है. आपके पास if you have additional add-on courses like if you've cleared NISM, I know Tejas you have cleared NISM, and if you have NCFM or financial modeling or any valuation, if you've built any models yourself, or if you have done any case study, any case competitions, if you have anything other than the CFA to हम्म। add on to your resume, then you can expect a package above 10. That's how it went in my college. But अगर आपका if you're only relying on CFA as a
प्लेसमेंट ऑप्शन, देन वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिर आपको फ्रेशर्स के रेंज में ही सैलरी मिलेगी, बट वंस यू गेट टू लेवल 2 एंड लेवल 3 देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड हाइक। बट ओके। आई थिंक लेवल 1 के साथ, एंड यू इफ यू डोंट हैव एनी अदर एडिशनल एड ऑन्स टू योर रेज्यूमे, देन बस नॉर्मल फ्रेशर से 1 और 2 लाख ज्यादा ही मिल सकता है। आई थिंक 10 इज़ ऑल्सो सीलिंग लिमिट अगर कोई लेवल 1 क्लियर कर रहा है। लोअर लिमिट तो हम्म। बहुत कम होगी, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करना हाँ। चाहिए। यू कैन, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम 5 to 10। तो हम्म। 10 तो मुझे तो लगता है, मेरे एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि 10 इज सीलिंग, क्योंकि इस CFA के साथ तुम्हें स्किल्स भी काफ़ी बिल्ड करने पड़ेंगे तब जाके तुम 10 तक हाँ पहुँचोगे। हाँ। और वो एग्जैक्टली। डिपेंड भी करता है ना कि कंपनी कैसी है। बड़ी फर्म है तो वो हम्म। ऑब्वियसली ज़्यादा पे करेगी। अगर तुम्हारे हम्म। शहर में ऐसी कंपनी नहीं है तो ऑब्वियसली उतना पैकेज नहीं मिल सकता। हाँ, तो मतलब वो सिर्फ सीएफए के बेसिस पे आप ऐसे सैलरी का नहीं कर हम्म। सकते। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पर्सन। या ऑफ कोर्स। तो तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब जब तुमने सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद दो हम्म। तीन महीने थे तुम्हारे पास, तो उसमें रिवीजन कैसे कर रहे थे? तुम्हारे खुद के नोट्स थे या कोई क्रैश कोर्स था, या कहाँ से किया मतलब? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि वो रिवीजन का जो लास्ट मंथ होता है ना, दैट हम्म। कैन मेक और ब्रेक योर एग्जाम रिजल्ट। सो रिवीजन में यू हैव टू गो ऑल इन, you have to say no to all your friends, everyone, all your family. It's just you and CFA at this point. I had paid around 400 rupees to get Kunal Doshi's हम्म। revision notes. So his notes were very crisp and concise, and they covered everything in the syllabus. So I found those notes very helpful. I would at least read that 200 300 PDF at least once a day. Other than that, ethics is another make or break subject. And as I said, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी भी आपको 90 के ऊपर बहुत अनलाइकली है आना. हम्म। So you have to keep practicing ethics from premium pack, LES. श्वेजर आप पहले से करके रखो रिवीजन में, क्योंकि उनके क्वेश्चंस उतने ज्यादा वो रेलेवेंट नहीं सीएफए है। के लैंग्वेज में नहीं है, हम्म। तो उतने रेलेवेंट नहीं होते रिवीजन पे। आप पहले से ही करके रखो प्रीमियम पैक, एंड देन फिर और आपको ईओसी क्वेश्चंस, एलईएस एंड ईओसी सेम ही होता है, बट फिर भी आप थोड़ा टेक्स्ट बुक भी एक बार सिलेबस हम्म। उनका पढ़ लो. तो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड what I used to do is मैं अपनी ethics की notebook में whatever I would find a weird point कि like इस case में अगर कुछ ऐसा होता है तो I would write down that case, and then at the end I would revise those cases again. And I think you said around 4,000 questions you हम्म। had solved, right? हाँ 4,000 to 5,000. हाँ, I think वो तो मतलब उसके बाद तो you are a comfortable pass if you reach that amount. हाँ, क्योंकि मुझे तो लगा था जब मैंने एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकला, तो आई आई वॉज थिंकिंग कि आई विल पास। मुझे ऐसा डाउट नहीं था कि पास नहीं होऊंगा, बट स्कोर कितना आएगा उसका डाउट था मुझे। बट मुझे एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बस आधे घंटे पहले शक हुआ मुझ पे, अगर गलती से फेल हो गया, डिड नॉट पास दिख गया, तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि इतने हम्म. मेहनत दी है ऑलरेडी और फिर डिड नॉट पास देख के काफ़ी लोगों का दिख रहा Yeah. है अभी लिंक्डइन पे। बुरा लगता है उनके लिए, लेकिन फिर भी। तो अभी जो फेब में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करोगी लास्ट 1 वीक या फिर 1 मंथ में, बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू क्लियर द एग्ज़ाम? So अभी there is no time to sit and revise all of the syllabus once again. अभी the only thing you can do is to start giving mocks as soon as possible. हम्म। Start revising from those mocks, and बस just एक दो जो बहुत critical, जैसे quants के last के जो chapters है hypothesis testing and वो सब, उसको बस एक बार run through कर लो, because a lot of students have a difficulty in that. मुझे भी थी। And then फिर आप मुझे भी थी. मैं तो छोड़ के गया था वैसे वो तो एग्ज़ाम में, लेकिन गॉड्स ग्रेस, बोल नहीं सकता मैं कुछ। तो ऐसा छोड़ छोड़ के नहीं, बट थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस कर मैं लेना सजेस्ट नहीं चाहिए. करता किसी को करके जाना, हाँ हाँ. मैं अपना केस बता रहा हूँ बस। हाँ. सो जस्ट ट्राई गिविंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, एंड जो भी एलईएस से क्वेश्चंस, आप अपनी एक्यूरेसी ट्राई करो थोड़ा सा ऊपर जाए, बिकॉज अभी बस आप रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. यू कांट लर्न एनीथिंग न्यू अभी इन हम्म। दिस लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज आप नया नया सीखते जाओगे तो आपको पुराना पुराना भूलते जाएगा, ऐसा भी होता है. So yeah, and do not panic.
That's the one thing I can say. बस दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। nervous, हाँ, most important is कि थोड़ा calm mind के साथ अपना करो। मॉक्स में अगर 70-75 भी आ रहा है तो भी काम रहो, क्योंकि वो हाँ अच्छा हाँ। स्कोर है। अगर एग्जाम में जाके उसके ऊपर तुम नर्वस हुए तो वो ड्रॉप भी हो सकता है 60-65। तो नर्वस नहीं होना इम्पोर्टेंट है। तो लेवल 2 का प्लान कब है आपका, कब दे रहे हो लेवल 2? Level 2, I've heard that it's very it's way tougher. It's a very hard jump in difficulty level from level 1. So I am planning maybe next year. Next year में देखना पड़ेगा because अभी तक I haven't started my syllabus or anything yet. But mostly I'll give it next year, not this year. I नॉट can't. 2026? मेरा भी श्योर नहीं हूँ, मैं अगस्त या फिर नवंबर में दे सकता हूँ। अगस्त का तो नहीं हम्म है ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम कम मिलता है पढ़ाई के लिए, भी जॉब के साथ हम्म मैनेज करना मुश्किल है। तो फिर नवंबर या फिर उसके बाद ही दूंगा शायद। तो हम्म। ये भी पॉइंट है कि काफ़ी लोगों ने डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में हाँ अपने हिसाब से। नहीं तो कुछ लोग वही। जल्दी जल्दी करने में कर देते जल्दी 6 मंथ में रजिस्टर, और प्रिपेयर नहीं कर पाते फिर। तो ये एक हम्म। इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, कुछ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए स्पेशली डिफिकल्ट हो जाता है हम्म मैनेज करना, जैसे आपके लिए भी थोड़ा हम्म डिफिकल्ट हम्म होगा ना मैनेज करना। हम्म, तो उनको थोड़ा अपने उसके शेड्यूल के हिसाब से टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारा कोई और दोस्त है मतलब बड़ी, जो CFA के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा था? हाँ, so I had a senior who also cleared level 1. He also got 1770. So I was totally depending on him, and he was guiding me कि ऐसे questions करो, दिस इज व्हाट यू शुड एम फॉर इन मॉक्स। एंड देन फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस है, आपके वीडियोस है, और भी हम्म सब CFA L1 के इतने ज्यादा वीडियोस नहीं रहते, बट यू गेट अ जिस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज। एंड देन अगेन हम्म स्ट्रेटजीज में भी सब वही रेपिटेटिव है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बस, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। व्हाट इज़ द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, मतलब बेस्ट तुम्हें अभी तक प्रिपरेशन में लगी हो कि वो करना ही चाहिए, कोई भी हो वो करना ही चाहिए, ऐसा कुछ एडवाइस? ओके, वन एडवाइस आई वुड से इज डोंट पैनिक अगर आपको हम्म सब सिलेबस याद नहीं हो, हम्म बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है, और अगर आपको हर सब्जेक्ट से हर चैप्टर का हर चीज नहीं याद है एग्जाम के पहले पहले में भी, देन इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड इन दोज 180 क्वेश्चंस इट्स वेरी लेस लाइकली कि उस आपका एक भूले हुए चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। हम्म। So don't panic if you can't remember everything, but do try to go over all of the syllabus at least once. एक ऊपर ऊपर का revision. That's why the Kunal Doshi's revision हम्म, notes were very helpful in just going through everything once, so that you have a brief idea, and थोड़ा बहुत अब आप खुद से भी मॉक्स का आप सॉल्व कर दो, जितना रिविजन कर सकते हो करो, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो करो, एंड डोंट पैनिक, जस्ट हैव अ चॉकलेट। ब्रेक में हमेशा चॉकलेट कंपलसरी होता है। ब्रेक में कौन सी चॉकलेट है वो? डू नथिंग, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, वही करना चाहिए ब्रेक में। हाँ। एंड आई also heard, आई थिंक आपके वीडियो में या फिर अभी वीडियो में, कि ब्रेक में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज फिर बहुत ओवरलोड हो जाता है माइंड, और आप कितना ही याद रखोगे। मैक्स तुम्हारे पास 15 मिनट होते हैं, क्योंकि बाहर निकलने में 5 मिनट लगते हैं, अंदर जाने में पाँच हाँ मिनट लगते हैं, और फिर वॉशरूम जाओगे तो 5 मिनट तो वैसे निकल जाते हैं, और फिर वो चेक करते हैं तुम्हें, उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो तुम्हारे पास 10-15 मिनट में तुम क्या कर लोगे जो तुमने पिछले 6-7 महीने में नहीं किया है? तो इसलिए हाँ स्ट्रेस नहीं करना एग्जैक्टली। चाहिए। हाँ, इवन ऑन द लास्ट डे, तुम लास्ट डे में क्या ही पढ़ लोगे इतना ज्यादा कि जो हाँ 6-7 महीने में नहीं किया है। सो लास्ट डे में भी रिलैक्स, अपने बॉडी को और अपने माइंड को थोड़ा टाइम दो, एंड जस्ट एक पूरा वॉर टाइप होता है। आप बेसिकली वहाँ पे 6 घंटे हो, वहाँ पे एग्जाम सेंटर में बहुत एनर्जी लगता है एग्जाम देने के लिए, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। काफ़ी टाइम होता है वो, 5 आवर्स। हम्म। थैंक यू श्रेया फॉर दिस इंटरव्यू, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू। अच्छा लगा तुमसे बात थैंक यू सो करके। मच तेजस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। या अच्छा ही होगा, जस्ट आई नो बहुत पैसा और बहुत टाइम बहुत एनर्जी लगता है इसमें, तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। I hope this helps or this all the candidates for watching this video, and all the best for your career too, equity research। थैंक यू। फिलहाल तो अभी तो तुम्हारा कंफर्म नहीं है ना कहाँ पे जाना है?
मेरा तो वैसे कंफर्म है, वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है मुझे, तो मेरा प्लेसमेंट भी अभी हम्म वहीं पे हुआ है, तो आई विल फोकस हम्म ऑन दैट। हम्म दैट्स नाइस, बट लाइक बहुत सारे लोगों का ऐसे स्टार्टिंग में नहीं होता है ना इतना, हम्म। तो उसके लिए भी, बट फिर भी इट्स नॉट लाइक कि सीएफए आपका इज नॉट वर्थ इट अगर आपको इमिडिएटली जॉब नहीं मिल गई है। जैसे आप लिंक्डइन पे डालो आपको रिक्रूटर नहीं आए, तो ऐसा मत सोचो कि वेस्ट गया है, आपके पैसे वेस्ट हो गए। वो आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी तो इन हैंड आता ही है, हम्म। वेदर यू वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडी और इफ यू वांट टू स्विच योर करियर फील्ड और एनीथिंग, आपको उसमें काम तो आता ही है। बिल्कुल। तो थैंक यू, एंड आई थिंक वी शैल एंड दिस इंटरव्यू। थैंक यू।